we were taking the teaching of Jesus and his commissioning of the disciples to be salt and light. He just said, you are the salt of the earth and you are the light of the world. और हम परमेश्वर के इसी वचन से सीख रहे हैं, उसकी बात को जान रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह सीधा अपने चेलों से कहता है कि तुम संसार के ज्योति और नमक हो. So the verses beginning from verse 13 goes like this. और 5 अध्याय की 13 आयत से शुरुआत इस तरह होती है. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and be trampled underfoot. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे. Last Sunday we meditated on what does it mean to be salt? What did Jesus mean when he said you are the salt of the earth? और पिछले रविवार हमने मनन किया था, ध्यान लगाया था कि नमक होने का मतलब क्या है. मसीह के अनुसार आप नमक हो, इसका अर्थ क्या है. And we have seen from our study last Sunday that the every quality and the goodness of salt is such that it changes the inside. और हमने ये सीखा था कि जो नमक है उसमें ऐसी खास बातें हैं, उसकी गुणवत्ता ऐसी होती है कि वो आपको भीतर से परिवर्तित करता है. So everybody say it with me, inward change. So salt, what it do is it brings about inward change in ourselves and it changes the inside of other people. तो नमक का काम यही होता है कि हमें व्यक्तिगत रूप से वो अंदर से बदल देता है, और हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं उन पर भी जब प्रभाव डलता है वो भी भीतर से बदलते हैं. And when the heart changes, when the inside changes, it is easy to change the outside. और जब अंदर से हम बदल जाते हैं, हमारा दिल बदल जाता है, तो बाहर से बदलाव लाना आसान होता है. The Bible says from the abundance of your heart, your mouth speaks. और बाइबल लिखा है कि दिल के गहराई से, उसके बढ़ोतरी से आपका मुख बोलता है. What is the language that flows from your mouth? What kind of songs that you hum when you are in the shower? What kind of language comes out your mouth when you're frustrated at a red light or somebody cut you across? Or what kind of artwork are you drawing? Or what kind of music are you playing? These are all a reflection of the inward men that you are. तो जब आप नहाते समय कोई गाना गुनगुनाते हैं या बात करते हैं, कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, या जब आप क्रोधित होते हैं या हताश होते हैं तब क्या वाणी बोलते हैं, या जब सड़क पर लाल बत्ती होती है, आपकी गाड़ी खड़ी होती है, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके हृदय की स्थिति को दिखाता है. So I pray that you have understood the principles of being salt in the world and you have made a determined effort and a decision in your life that as a child of God, I'm going to be the salt in my home, in my community, in my nation. मैं यही आशा और विश्वास करता हूं कि आप खुद के मन से निर्णय लेंगे कि मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं संसार में नमक बनूं, अपने घर पे, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक क्षेत्र में और व्यवसाय में भी. So salt makes inward change. तो जो नमक है वो आपको अंदर से बदलता है. So today we're going to look at how about light, the quality that Jesus said, the metaphor that Jesus uses, you are the light of the world. We're going to focus on that. और आज हम ध्यान देंगे जो यीशु मसीह भी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जब वो कहते हैं तुम ज्योति हो, तो ज्योति होने का मतलब क्या होता है. Light, the goodness of light is that it changes the outside. और ज्योति या रोशनी की खास बात ये होती है कि वो बाहर से चीजों को बदल देती है. So remember this, salt changes the inside, light changes the तो outside. याद रखें जो नमक है वो अंदर से बदलता है और जो ज्योति है वो बाहर से. I recently heard somebody say like this. और मैंने हाल ही में सुना किसी ने ऐसे कहा, Don't blame the darkness for being dark. कि अंधकार को अंधेरा होने का उस पर
उस पर इल्जाम ना लगाएं। There just needs to be more light. वहां पर बस थोड़ी और ज्योति की आवश्यकता है। So to be honest, I hadn't quite thought about it that way before till I heard someone say that. और ईमानदारी से कहूं, जब तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, मैंने सुना नहीं, मैंने इस कदर इसके बारे में सोचा भी But नहीं how था। true is that? लेकिन इसमें कितनी सच्चाई छिपी That है। many times we complain about the darkness that is all around us. और कितनी मर्तबा हम इल्जाम लगाते हैं या शिकायत करते हैं कि अंधकार कितना है। The problem is not the darkness. अंधकार समस्या नहीं है। The problem is that there ain't enough light out there. समस्या ये है कि वहां पर ज्योति की कमी है। Amen? आमीन। So we have all the more responsibility when there is more darkness for us as God's people to be His light in this dark world. और इस कदर हम सबकी और भी जिम्मेवारी बन जाती है, जहां जितना अंधेरा होता है वहां उतनी ज्योति की भी आवश्यकता है। But how can we be that such kind of salt, or how can we be that light? लेकिन हम किस तरह से ऐसा नमक और ऐसे ज्योति बन सकते हैं? Let me tell you, Jesus very importantly taught this following the teachings of the 8 Beatitudes. और जब यीशु मसीह ने पहाड़ी समुपदेश दिया, उसके बाद ही यीशु मसीह ने ये शिक्षा भी प्रदान A करी। while ago, we did a whole series of teachings in our church on Beatitudes. और हमने कलीसिया में इस पहाड़ी समुपदेश के ऊपर पूरी एक शिक्षा दी थी। So being salt and light is the result of walking out and living out the Sermon on the Mount or the Beatitudes. और जो पहाड़ी समुपदेश है, जब हम उसको पढ़ते हैं, ज्योति और नमक का मतलब यही होता है कि इस उपदेश के अनुसार जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। So Matthew chapter 5 verses 13 to 16 comes after Matthew chapter 5 verse 3 to 10. और जो मती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय, जो भी हमने 13 से 16 तक आयत पढ़ी है, वो बाद में आती है, उससे पहले आती है 3 से लेकर 10 आयत। So you cannot put the cart in front of the horse. और इसलिए जो घोड़ा गाड़ी होती है, वो उसको आप कभी घोड़े के आगे नहीं बांध सकते। You have to put the horse in front of the cart. हमेशा उसके घोड़े हमेशा आगे ही होता है You गाड़ी want to के। be salt and light? आपको नमक और ज्योति अगर बनना है, Obey the teachings of Jesus, the Sermon on the Mount. तो यीशु मसीह ने जो पहाड़ पे उपदेश दिया था, पहले उसको मानना सीखें। In other words, और दूसरे शब्दों में, we cannot truly advance God's kingdom हम वास्तविकता में कभी भी यीशु मसीह के साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाएंगे unless and until we become kingdom people, or we become saturated by kingdom principles. हम तब तक परमेश्वर के साम्राज्य को नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक हम खुद एक साम्राज्य ना बन जाए, या परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करना ना शुरू कर We दें। cannot change the society until the Beatitudes change us. हम तब समाज पर असर नहीं डाल सकते जब तक पहाड़ी समुपदेश का असर हम पर नहीं पड़ता। We cannot take other people more than we ourselves have traveled. और हम लोगों को उतना हमारे साथ नहीं ले जा सकते जितना हमने व्यक्तिगत रूप से खुद सफर किया है। So that's why there is a lot of responsibility that comes upon us as God's people at various levels of your walk with Christ, as a young adult, as a teenager, as a single man, as a father, as a mother, as a pastor. We all have certain measure of responsibility. और हम सभी के पास जिम्मेवारी का अपना अपने का मापदंड होता है, चाहे आप जवान हैं या बुजुर्ग हैं या पति हैं या व्यवसाय में काम करते हैं, हम सभी की उस स्तर के मुताबिक जिम्मेवारी बनती है। If we are not transformed, we cannot transform others. अगर हम परिवर्तित नहीं हुए, हम दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे। So it is a common mistake to teach Matthew chapter 5 verse 13 to 16 outside of the context or independent of the teachings of the Beatitudes. और ये गलत हो जाता है, ये साधारण रूप से इसे गलती हम करते भी हैं कि हम मती रची सुसमाचार 5 के 13 से 16 पढ़ा देते हैं, लेकिन उससे पहले पहाड़ी समुपदेश की शिक्षा नहीं देते। Now, when Jesus taught about salt and light, जब यीशु मसीह ने नमक और ज्योति की शिक्षा दी थी, and when today's world we talk about salt and light, और जब हम आज के समय में नमक और ज्योति की चर्चा करते हैं, there's a whole different understanding or a different perspective about both of these elements. और इन दोनों के बारे में आज के समय में और उस समय में जो बदलाव है वो बड़ा है। For example, salt was one of the most highly priced product, as I said last Sunday, in the days of Jesus. और जैसे मैंने पिछले रविवार को बताया, जो नमक होता था वो उस समय की सबसे महंगी चीजों में से एक था। A man's worth was valued based on how much salt he had.
और उसकी तनख्वाह उस या वो कितना अमीर है वो पता लगता था, उसके पास नमक कितना But है। today, a man's worth is valued based on how much less salt he takes. और आज के समय में उसकी एक अमीरी तब नजर आती है ये देखकर कि नमक कौन कितना कम खा रहा In है। some cultures, it has become even a status symbol to say, I have blood pressure. और कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जहां पर लोग ऐसा समझते हैं कि वो बड़ा आदमी है अगर उसे ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो। Or I remember in the 80s when people used to say, I have BP, they used these abbreviations, and it was like, yeah, it was somebody big shot. और 80 के दशक में लोग बात करते थे मुझे ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो लोगों को लगता है ये अमीर होगा, इसलिए इससे ये अमीरों वाली बीमारी है। Because poor people don't talk about BP and diabetes and all of these things. क्योंकि गरीब लोग बात नहीं करते कि मुझे बीपी हो गया या मुझे शुगर हो गई है। So today, we don't like salt. In fact, I don't take much salt because I do have BP. I'm a BP patient. और आज के समय में हम नमक कम लेते हैं, हालांकि मैं खुद नमक कम लेता हूं क्योंकि मुझे बीपी है। But one good thing about me is that I don't like salt anyway. और मुझे वैसे भी नमक ज्यादा पसंद भी नहीं है। So you can tell my wife I have no issue if there is no salt in my food. आप मेरी पत्नी से ही पूछ सकते हैं अगर मेरे खाने में आपने चुटकी भर भी नमक नहीं डाला मुझे कोई समस्या So नहीं। to make me understand the value of salt and say Jesus said you are the salt of the world and I hate salt, it is a very different thing to process in my mind. और अगर हम मुझ जैसे व्यक्ति से बात करो कि यीशु ने तो कहा है तुम संसार के नमक हो, तो मुझे नमक का संदर्भ समझने में मुश्किल आएगी। Talk about light. और ज्योति का जिक्र करें। In the days of Jesus, light was very precious. It was always an oil lamp and it had to be put on a pedestal so that people can see and it will never be hidden under a box. और यीशु मसीह के समय में ज्योति का भी बहुत महत्वपूर्ण था, तब लोग दीपक जलाकर उसे हमेशा ऊंची जगहों पर रखते थे, कहीं छिपाते नहीं थे। But today, लेकिन आज we don't have oil lamps. हमारे पास वो तेल के हम दीपक तो नहीं जलाते। Many of our children have no idea what an oil lamp look like. और हमारे ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है ये तेल का दीपक होता क्या है या कैसा होता है। And we have a problem. We have these beautiful lights. और ये समस्या है, इतनी सुंदर हमारे पास लाइट या ज्योति देने के उपकरण है। And what do we as parents tell the children all the time? हम ज्यादा समय अपने बच्चों को क्या बोलते हैं माता पिता होने के नाते? Turn off the light. रोशनी को बंद करो। Because we are the ones paying the electricity bill. क्योंकि हम हैं जिन्होंने बिजली का बिल फिर देना होता है। So even light, we have a whole different perspective today. और इसलिए रोशनी का जो संदर्भ है वो भी आज के समय में हमारे लिए अलग है। Salt we don't want. नमक हमें नहीं चाहिए। Light we have to use less, and now modern electrical lights are coming out with very little consumption of electricity. And so even light, we want to turn it off all the time. और अगर ज्योति की भी बात करें आज के समय उसे भी हम कहते हैं कि इसका धीमा करो या बंद कर दो। So Jesus is saying you are the light of the world. तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि आप संसार की ज्योति हैं। But dictionary says light, or it defines light as the source of illumination. और जो शब्दकोश है वो इसकी व्याख्या इस तरह से देता है, ऐसी कोई भी चीज जो आपके वातावरण में चमक लाती है या ज्योति लाती है। We also understand light much more deeper scientifically than the days of Jesus. और आज हम ज्योति को वैज्ञानिक रूप से थोड़ा ज्यादा समझ पाते हैं बजाय कि तुलना करें तो यीशु के समय में। We know that it's because of light we can see the entire spectrum of colors. और ज्योति के ही कारण हम जानते हैं कि रंगों में और इसके अंदर कितने रंग होते हैं हम देख सकते हैं आज। Recently, for our new church, we had to buy new televisions for the songs to be projected. And we were looking at televisions, and my goodness, the options of colors based on lights, the technology advancements is beyond comprehension. और हम अपनी नई कलीसिया के लिए कुछ टीवी देख रहे थे ताकि ऊपर लगाएं जिसमें गीत है जो वो लिखे आए, तब हमने देखा कि चुनाव करने के लिए इतनी बड़ी तकनीकी टेलीविजन थे कि हम अचंभा खा गए। We know also that sunlight provided the much needed energy to sustain life on earth, and it gives us the very important vitamin D. हम जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है वो धरती के लिए उसके जीवित रहने के लिए और जिंदगी को चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि हमारे विटामिन डी भी उस ज्योति से मिलता है। One of the biggest problem with many of us in India is that we have shortage of vitamin D. हम जो कई भारतीय हैं हमारी एक समस्या है
कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। Because we Indians don't like to go in the sun because we are afraid we'll get more dark. हम जो भारतीय हैं हम सूरज में नहीं जाते ये सोच के कि मेरा रंग काला हो जाएगा। And that's why you find girls wearing scooties with full gloves. Even on a hot summer day, their face is covered, everything is covered because they don't want the sun to hit their skin. They want to look like white skin. और गर्मियों में भी आप देखें कुछ लोग जब स्कूटर मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं, लड़कियां जैसे, तो वो अपने हाथों को पूरे ग्लव से भर लेती हैं, चेहरे को ढक लेती है कि सूरज की किरण भी ना पड़े। But go and do a blood test, you will find your vitamin D is almost zero or maybe in big trouble. अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करेंगे आप जानेंगे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। So Jesus is pointing out something very important here. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। When we walk into a dark room, जब हम एक अंधकार भरे कमरे में दाखिल होते हैं, we can switch on a switch and the light will come into that room. और हम एक स्विच दबा देंगे और कमरे में रोशनी हो जाएगी। But in the time of Jesus, people had to go and buy the oil, take care of the lamp. It was a whole duty in the home to keep the lights alive in the house. और लेकिन यीशु मसीह के समय में लोगों को जाकर दीपक खरीदने होता था, तेल खरीदना होता था, तब कहीं जाके वो घर में ज्योति को ला पाते थे। So for them to think that someone would do all of that hard work to lit a lamp and to keep it under a box or a clay pot or something is beyond imagination. और इसलिए उन समय में अगर सोचे कि वो लोगों के साथ अगर बात की जाए, वो सोचे कि हम दीपक जला के पैमाने के नीचे या किसी चीज के नीचे छिपा देंगे, उनकी समझ से बाहर था। And that's why Jesus talk about you being the light and not being covered, but put it on like a city on a hill. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आप जो ज्योति हो, आपके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता, आप तो पहाड़ी की भी चोटी पर खड़े हो। My dear friends, we have two choices in this life. मेरे मित्रों, हमारे पास इस जिंदगी में, इस जीवन में दो चुनाव होते हैं। Either we can be part of the darkness या तो हम अंधकार के हिस्सा हो सकते हैं and just kind of camouflage with the world, और अपने आप को दुनिया की रूपरेखा दे सकते हैं, or shine as a light and be different. और या तो ज्योति के तरह चमक सकते हैं और एक अलग, खुद को अलग कर सकते That हैं। means you got to stand out and stand apart. इसका मतलब आपको खड़ा होना होगा और खुद को अलग करना होगा। Now, how many of you seen those night creatures that produces the light? और आप में से कितनों ने जुगनू देखे हैं? Now, now it has become part of the endangered species because of environmental issues. They're dying out. और लेकिन आज के समय में वो जो जुगनू होते हैं वो नाश खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। In many parts of the world now they are working so hard to preserve those creatures and their growth and their multiplication. और दुनिया के कई हिस्सों में कई देश अब उन्हें बचाने की तकनीक ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें और उनके नंबर को, गिनती को बढ़ाया जा सके। But even in the ecological system of the world, those little creatures that produces those lights, those bright lights, they are very important for the ecosystem. और लेकिन जो ये छोटे से ये कीटाणु लगा ले जो भी होते हैं, ये जो ज्योति देते हैं या जो जुगनू होते हैं, इनका वातावरण के लिए होना बहुत महत्वपूर्ण है। So how can we, as God's people, be part of the ecosystem to sustain the ecosystem and shine the light of Jesus ever so bright and never become dim and compromise like many people are doing in the world today? तो मसीह होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते हम खुद को कैसे वो ज्योति बना सकते हैं कि जो इस समाज हमें दिया गया है, इस पर हम ज्योति बनकर एक प्रभाव डाल सके। Turn to Gospel of John chapter 8 verse 12. आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 12 आयत निकाल लें। When Jesus spoke to the people again, जब यीशु मसीह ने फिर से लोगों से बात की, John chapter 8 verse 12, यूहन्ना उसके 8 की 12 he आयत, says, I am the light of the world. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। Whoever follows me will never walk in darkness, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, but they will have the light of life. परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। They will have the light of life. जीवन की ज्योति पाएगा। You know, those little bugs, we as kids used to catch them at night. और जो जुगनू होते हैं, जब हम छोटे ही थे, हम रात को उन्हें पकड़ा करते थे। And we used to be cruel kids as typical as we were. और जैसे हम थे, हम बड़े शरारती थे उस समय। We used to tear that little light illuminating part of their body and we used to affix wherever we wanted at night.
और रात को जो उनके शरीर का हिस्सा ज्योति देता था हम उसे उखाड़ देते थे और जहां हमें ज्योति चाहिए थी वहां लगाने का प्रयास करते थे। So that was one way for us to make our room decorate with lights at night, have 20 of these bugs killed, their little part being extracted and put on our roof. तो हम अपने कमरे को रात को जगमग ऐसे ही किया करते थे, उनके ज्योति वाले हिस्से को वहां से उखाड़ कर अपने कमरों में अलग अलग जगह लगाते थे। How wonderful it is that we don't need to do any of those. लेकिन आप कितनी अच्छी बात, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। Jesus says, प्रभु यीशु ने कहा, if you follow me, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे you will have my light. तुम्हारे पास मेरी ज्योति होगी। So essentially, our light, when Jesus said, you are the light of the world, he is saying, you are me walking on the streets. और अपने शब्दों में यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि तुम मैं हूं जो संसार में चल रहे हो। Because in ourselves, there is no goodness. हमारे खुद के अंदर कुछ भलाई नहीं है। This body is full of darkness. ये जो शरीर है ये अंधकार से भरा है। But when we have Jesus in us, लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे भीतर वास करते हैं, we are naturally lighters, the light of the Jesus. तब हम साधारण रूप से और कुदरती रूप से हम यीशु की ज्योति बन जाते हैं। So this verse tells us that in order for us to produce the light, तो ये आयत हमें सिखाता है कि अगर हमने ज्योति को लेकर आना है, we must have fellowship with the light. तो हमें ज्योति के साथ पहले मिलना होगा। You are the branch that is embedded in the vine. और आप वो शाखा है जो दाखलता में लगी है। So we need to follow Jesus Christ, his teachings and his examples. तो हमें यीशु के पीछे चलना है, उसकी शिक्षा को समझना है और लागू करना है, मानना है। That means we literally must be like God in our thinking. और इसका मतलब है हमें, अगर साधारण रूप से बोलो, हमें अपनी सोच विचार में परमेश्वर की तरह ही सोचना है। We must be like God in our words. अब हमारे शब्दों में हमें परमेश्वर की तरह काम करना होगा। We must be like God in our actions. हमारे कामों में हमें परमेश्वर की तरह ही चलना फिरना होगा। Wow. That's a big responsibility. ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। So as John the Baptizer is saying here, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ बोलता है, Christ must increase in me. मसीह को मुझ में बढ़ना है And I must decrease. और मुझे कम होना है। So the closer we walk with Jesus, और जितना निकट होकर हम यीशु के जब चलते हैं, the more Jesus will increase in us. तब उतना ही यीशु हमारे भीतर बढ़ेगा। The far we go away from Jesus, और जितना यीशु से हम दूर भागेंगे, our light will dim, and it will become dark. तो हमारी ज्योति कम कम और अंधेरा ही हो जाएगा। So what can a light do for us? तो एक ज्योति हमारे लिए कर क्या सकती है? Number one, पहली बात, it changes everything, or it change all. और ये ज्योति है वो हमारे आसपास, पहली बात है, सब कुछ बदल देती है। We're talking about transforming and changing the world. हम संसार को बदलने, परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। Matthew chapter 5 verse 14, मत्ती 5:14 में, you are the light of the world. तुम संसार की ज्योति हो। A city situated on a hill cannot be hidden. और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। So in other words, you are meant to be seen by everybody. और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जरूरी है कि बाकी लोग आप सबको देख सकें। You cannot live in a bubble. आप एक गोले के अंदर बंद होकर नहीं रह सकते। Israeli villages were built on ridges to be seen at night. Israeli villages were built on ridges to be seen at night like Shimla. और जो इजराइल के जो गांव जो बसे हुए थे वो पहाड़ की चोटी पर बसे हुए थे, जैसे हमारे यहाँ पे शिमला को हम देखते हैं। And so people were aware what does it mean for the oil lamps to be kept in their houses, and at night every house reflects the light coming out of their homes. और इसलिए वो लोग समझते थे कि ज्योति जलाकर, जो यीशु मसीह ने कहा है कि पहाड़ की चोटी पे बसे हुए नगर की तरह तुम हो, वो जानते थे कि ज्योति जलाकर उसे छिपाना नहीं है। Jesus is not talking about one light that brightens the whole world. यीशु मसीह एक ज्योति का जिक्र नहीं कर रहे कि एक ज्योति पूरे संसार को चमका देगी। Jesus is talking about one lamp that lightens up one house. और यीशु मसीह यहाँ पे एक दीपक की बात कर रहे जो एक घर को जलाता है या रोशनी लेकर आता है। My dear friends, we are little lamps in the world. इसलिए हम सभी पूरे दुनिया में छोटे छोटे दीपक हैं। And that's why we need to fellowship together and come together as a church.
और इसलिए कलीसिया होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें इकट्ठा आना है। When we bring our little lamps together, जब हम अपने छोटे दीपकों को मिलाकर लाते हैं, we create a big light तब हम एक बड़ी ज्योति को बनाते हैं that cannot be hidden, that cannot be, that is not invincible. और हम तब ऐसी ज्योति बन जाते हैं जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको छिपाया नहीं जा सकता। Amen. आमीन। As a church, together, when our lamps are brought together, we can shine brighter. तो एक कलीसिया होने के नाते जब हमारे दीपकों को इकट्ठा लेकर आया था, हम और ज्यादा चमक सकते हैं। Amen. आमीन। So my influence is small, और इसलिए जो मेरा प्रभाव है वो ज्यादा होना चाहिए। but together when we influence, we can bring a big change. लेकिन जब हम मिलकर उस प्रभाव को लाते हैं तो बड़े बदलाव को लेकर आ सकते So the हैं। implication for you and for me, तो हम हमारे लिए जो सीखने के लिए जो चीजें हैं I am different. कि मैं अलग हूँ। Can you put your hand on your chest and say, I'm different? क्या वो अपने सीने पर हाथ रख के कह सकते हैं कि मैं अलग हूँ? What is the difference about me? मेरे बारे में क्या अलग बात I है? have the light of Jesus in me. मुझ में यीशु की ज्योति है। Amen. आमीन। Wherever I go, मैं जहां कहीं through जाऊं, my words, मेरे कामों my के कारण, behavior, मेरे व्यवहार से, my action, मेरे कामों से I'm going to change circumstances. मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा। Amen. आमीन। I'm not going to conform to the expectations of the society. मैं समाज की मुझसे क्या उम्मीदें हैं मैं वैसा काम नहीं करूंगा। I'm not going to be sucked in by the pressures that surrounds me. और मेरे इर्द गिर्द मुझ पर क्या प्रभाव या क्या जोर डाला जाता है मैं उसके अनुसार नहीं And चलूंगा। we are not going to become like the world. हम संसार की तरह नहीं बनेंगे। I'm different. मैं अलग हूं। Amen. आमीन। The second thing that light does, और दूसरी बात जो ज्योति करती है, first thing, it changes everything. पहली बात है वो सब कुछ बदल देती है। Number two, दूसरा it guides everybody. कि वो हर एक की अगुवाई करता है, मार्गदर्शन It is करता a है। guidance for all. सभी के लिए अगुवाई है। Jesus says in verse 15, प्रभु यीशु मसीह 15 वचन में कहते हैं, no one lights a lamp and puts it under a basket, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं but rather on a lampstand, परंतु दीवट पर रखते and हैं, it gives light for all. तब उससे घर के सब लोगों को, Everybody say all. It gives lights for all who are in the house. तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। So when Jesus said, you are the light of the world, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार की ज्योति हो, he is speaking about the influence of our Christian witness in our society. तो वो बात कर रहा है कि मसीह होने के नाते जो आप मसीह के गवाह हैं उसका असर समाज पर कैसा होगा। What are we saying with our mouths through our life to witness for him? तो यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए हम अपने मुंह से क्या कुछ बोल रहे हैं। Light is a guide. ज्योति है वो अगुवाई करती है। Light points people towards the right direction. जो ज्योति है वो लोगों का ध्यान सही दिशा में लेकर जाती है। As a kid growing up in the village, I still remember in our church, we used to have cottage meetings in people's homes late in the evening. और मुझे याद जब हम छोटे ही थे, जो मसीह परिवारों के घर में हम जो मीटिंग या प्रार्थना सभा रखते थे वो शाम को रखा करते थे। Midweek meetings were a big deal in our church. हमारे कलीसिया में जो सप्ताह के बीच में घरों में जो मीटिंग होती थी सेवकाई की वो बड़ी बात होती थी। And always it started by about 7:30 p.m. और 7 या 7 के बाद ही हमेशा उस सभा की शुरुआत होती थी। And every family will go to this home where the meeting is held. और हर परिवार उस घर में जाता था जहां पर सभा होनी है, जहां मीटिंग होनी है। In those days, we didn't have battery operated lights or electric battery operated lights. तो उन दिनों में हमारे पास रास्ते के लिए, ज्योति के लिए कोई टॉर्च या ऐसी चीज नहीं थी। What we had? हमारे पास क्या था? We had a lot of coconut trees. हमारे पास जो नारियल के वृक्ष पेड़ थे। So the dry leaves that falls off the coconut tree became our torch. तो जो सूखे पत्ते गिर जाते थे उस पेड़ से, अब वो हमारे लिए टॉर्च का काम करते थे। During the daytime, my grandfather will make ready the torch for that evening's cottage meeting. और तो शाम पूरा दिन मेरे दादाजी इसको इंतजाम करते कि शाम को मीटिंग है तो ज्योति का वो तैयारी करते थे। So he will tie up the coconut leaf like a long stick. और वो एक लंबी कतार में जो वो पत्ते होते थे उन्हें बिछा देते थे। And he will light the end of the coconut leaf. और उसको एक सिरे से जो पत्ते होते थे उनको वो आग लगाते थे। And he will hold it in the front, and all of us as a family will walk behind him, and he will hold
the coconut leaf torch in front of us. और वो हमारे आगे आगे चलते, बाकी परिवार उनके पीछे, और वो जलते हुए पत्ते को टॉर्च की तरह वो ऊपर उठा के चला करते थे। By the time we reach their home, it will be all burned up. और जब तक हम उस घर तक पहुंचते थे तब तक वो पूरा जल जाता And we था। always had a spare one for coming back. और एक और लेकर चलते थे कि वापस भी तो आना है। Oh, how beautiful those days were. और वो दिन कितने सुंदर थे। It was such fun-filled days as a kid, I never forget. और एक बच्चे होने के नाते मेरे लिए वो बेहतरीन दिन थे। But this light was meant to guide everybody because we lived in the farm and there was king cobras at night and scorpions and all kinds of creatures. और हम ऐसी जगह पर रहते थे जहां खेत थे और रात को निकलने के लिए ज्योति की आवश्यकता थी क्योंकि वहां पे सांप बिच्छू भी निकला करते थे। My dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, the people of the world are walking in darkness. संसार के जो लोग हैं वो अंधेरे में ही चल रहे हैं। They are bitten by scorpions and they are bitten by king cobras. और उसे किंग कोबरा जैसे सांप और बिच्छू है वो उन्हें काट रहे हैं। Unless and until you and me we shine the light of Jesus, they will not reach their destiny safely. और जब तक मैं और आप यीशु की ज्योति को ना चमकाएं वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hiding the light saves no purpose. और अगर ज्योति का छिपा के रखें उसका कोई फायदा नहीं है। It won't do any good for anyone. वो किसी के लिए कोई भलाई का काम नहीं करेगी। Jesus said that we are the light. यीशु ने कहा हम वो ज्योति हैं। Jesus lives in us. यीशु हमारे भीतर वास करते हैं। We are the container of the light of Jesus. हम उस यीशु की ज्योति को संभालने वाले वो बर्तन हैं। Whenever you are timid or whether you are a timid person or whether you are an outgoing person. चाहे आप शर्मीले किस्म के इंसान हो या आप ऐसे हो जो सबके सामने आकर बोल देता है। Regardless of your personality, आपका व्यक्तित्व चाहे जैसा भी हो, you are created to let your light shine for Jesus. आपको ऐसा रचा गया है कि आप यीशु के लिए अपनी ज्योति को चमकाएं। Amen. आमीन। That means इसका मतलब you है have to learn to interact with people. आपको सीखना होगा लोगों से बात कैसे की जाती One है। of the problem with today's generation, आज की पीढ़ी है जो उनके साथ समस्या एक ये है, we are so gadget oriented people. हम ऐसे फोन या मोबाइल ऐसी चीजों में इतना जूझ चुके हैं। The only thing that we know what to relate to is the gadgets we have. अगर ऐसी कोई भी बात है जिसका हमें पता है कि उससे बात क्या करनी है वो हमारे फोन होते हैं। I know how to clean this. मुझे पता है फोन की सफाई कैसे I करनी know है। how to update this. मुझे पता है फोन को अपडेट कैसे करना I know है। how to put a cover for this. मुझे पता है फोन पे कवर कैसे लगाना I है। know how to put a screen guard over it. मुझे पता है स्क्रीन के ऊपर एक उसको बचाने के लिए गार्ड कैसे But लगाना I है। cannot say good morning to my neighbor. लेकिन मैं अपने पड़ोसी के उठ के सुप्रभात नहीं कह सकता। I cannot pick up a trash that somebody else has dropped on the floor. और अगर गलती से किसी और ने कुछ जमीन पर कुछ कूड़ा घेर दिया मैं उसे उठा नहीं सकता। As I shared with our ministry team in the church this morning, आज सुबह जब आपने मेरे सेवकाई की जो हमारी टीम है उनके साथ बांटा relationships are the roots. कि जो संबंध होते हैं वही जड़ होते हैं। What we do, our ministry, is the fruits. जो हम अपनी सेवकाई में करते हैं वो उसके फल होते हैं। Be a relationship person. आप ऐसे व्यक्ति बने जो संबंधों को मजबूत करता Build है, relationship with people. लोगों के साथ रिश्ता बनाए, संबंध बनाए। So what does this imply for us? और इससे हमारे लिए क्या सीख है? If light guides people, जिस तरह ज्योति है वो जो लोगों की अगुवाई the करती है, implication means I'm responsible. और इसकी शिक्षा ये है कि ये मेरी जिम्मेवारी है। Can you say it? I'm responsible. Come on, put your hand on your chest and say, I'm responsible. Amen. A pilot who takes on the seat and about to take the plane off the ground, he's responsible. और एक जो पायलट होता है जो जहाज को उड़ाता है जब अपनी कुर्सी पर बैठता है अब उसकी जिम्मेवारी है। This morning when my family got in my car and I'm driving the car, I'm responsible. और आज सुबह जब मेरा परिवार मेरी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को मैं चला रहा हूं तो मेरी जिम्मेवारी है। People of God, we are responsible people in the society. तो मसीह लोग विश्वासी होने के नाते हम समाज में जिम्मेवार व्यक्ति हैं। Are we making relationship with other people? क्या हम दूसरे लोगों के साथ रिश्ते को बना रहे हैं Or are we seeking isolation? या हम एकांत को खोज रहे हैं? It is up to us to spread the salt and the light. ये हमारे तक है हम कितना नमक और ज्योति को फैलाना चाहते हैं। The third and the final thing, और तीसरा और अंतिम बात, the light also warns everybody. जो रोशनी होती है वो दूसरों को चेतावनी भी देती है। Light is a warning to all. और जो ज्योति है वो चेतावनी भी सबको देती है। In any lighthouse, you will find a bright light.
और किसी भी ऐसी बड़ी इमारत जिसे लाइट हाउस ज्योति का घर बोला जाता है, उसमें बड़ी एक ज्योति लगी होती If है। you go to the big bays of the Indian Ocean or the Bay of Bengal, you will find huge, powerful lighthouses. अगर आप बड़े समुद्र तट के पास जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर एक बहुत बड़ी इमारत होती है, उसमें बड़ी रोशनी लगाई होती है। Our police cars have bright lights on the top of their car. और जो हमारी पुलिस की गाड़ियां होती है, उनकी गाड़ी के ऊपर बड़ी रोशनी लगाई जाती है। Or our ambulances have bright lights on the top of their और car. अगर एम्बुलेंस देखें उसके ऊपर भी जो लाइट है, ज्योति वो लगाई जाती है। On our crossroads in the roundabouts of Chandigarh, we have lights. और हमारे चौक के आसपास आप देखें वहां लाइट्स लगाई होती हैं। So lights serves as a purpose to warn people. और तो ज्योति ये भी काम करती है कि लोगों को वो चेतावनी देती है। Red means danger. लाल का मतलब होता है खतरा, Stop. कि रुक जाए। Yellow means be careful. और जब वो पीली होती है तो वो कहते हैं थोड़ा तैयार हो जाए, ध्यान रखें। Green means go, but be careful. लेकिन हरे का मतलब होता है आप जा सकते हो लेकिन सावधानी एहतियात करते हैं। What does blue means? नीले का मतलब क्या होता है? Stop. रुक जाओ। That's the police light. और वो पुलिस की गाड़ी होती है। All right. So these lights warns everybody. और जो ज्योति है वो दूसरों को चेतावनी भी देती है। What does we as Christians do when we carry the light of Jesus? हम मसीह होने के नाते जब यीशु की ज्योति को उठाकर चल रहे हैं, हमने क्या करना We है? are warning people of the impending danger that they are about to happen. हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं वो किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। That they're heading, if they don't change, if they don't turn around, they're heading into the wrong directions. और हम उन्हें ये शिक्षा देते हैं कि अगर वो नहीं बदलते, नहीं रुकते, तो वो बिल्कुल खतरे की ओर ही बढ़ रहे हैं। Our job as God's people is to make people aware of the danger. और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों को हम पहचान करें कि वो खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। So, what is the implication for us? तो हमारे लिए यहाँ पर क्या शिक्षा है? The implication is that I am an influencer. ये शिक्षा है कि मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। I am an influencer. मैं प्रभाव डालता हूँ। Can you put your hand on your chest and say, I'm an क्या आप influencer? अपने सीने पर हाथ रख के बोल सकते हैं कि मैं प्रभावशाली हूँ? And don't kid yourself when you said that. और आप खुद से मजाक ना करें जब आप ये कहते हैं। The very fact that you belong to Christ, और यही सत्य है कि आप मसीह में हैं, that we don't adopt to the system of this world, कि हम संसार की रीति के अनुसार नहीं चलते, that we march to a different drum beat, कि हम दूसरे स्वर पर ही चलते हैं। that alone gives us a unique influence in the society. यही बातें हमें खास बना देती है संसार में। That means इसका मतलब है we are influencing the behavior of other people, इसका मतलब है हम हमारा व्यवहार है वो दूसरों के व्यवहार को बदलता है, be it good or bad. चाहे हम अच्छा व्यवहार बरते या बुरा। Amen? आमीन। So if your friends are always using cuss words, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा गाली गलौज ही मुंह से निकालते हैं, what is your job? आपकी क्या जिम्मेवारी है? Just put up with it उसके साथ बने रहो or chup rahe? या चुप रहे? What do you do? क्या करेंगे आप? What do you do? आप क्या करेंगे? You need to confront in love. आपको प्रेम में होकर उन्हें रोकना है। If you are an influencer, अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अरे यार हर समय यही निकालते हैं आपका मुंह से, why don't you change? तुम बदल क्यों नहीं जाते? You are such a handsome looking guy, कितने सुंदर दिखते हो, but your mouth spoils it, man. लेकिन तेरा मुंह सारी खूबसूरती बर्बाद कर देता If है। you have the guts to tell him that, लेकिन अगर आप में हिम्मत है ये कहने के लिए, next time when he uses the cuss word in front of you, अगली बार जब आपके सामने मुंह से कुछ गलत बात बोलने लगेगा, he will think twice. वो 2 बार सोचेगा, Yes or no? हाँ या ना? Or are you afraid you will lose him as your friend? या आप डरते कि मैं उससे दोस्ती खो दूंगा या खो दूंगी? What do you prefer? Change his life or keep him as a friend? आप क्या किस बात को प्राथमिकता देंगे? उसके जीवन को बदल दें या वो जैसा है ऐसे उसे दोस्त बना के Or रखें? you also start using cuss word? या आप भी गालियां सीख दें? So you have these options. आपके पास ये चुनाव है। That's what an influencer means. ये एक प्रभावशाली व्यक्ति का मतलब होता है। Now, अब what does all this means? इन सभी का अर्थ क्या है? What does being salt and light, what is it going to do? ये नमक होना, ज्योति होना, ये करता क्या है? मतलब क्या है? Look at verse 16. आप 16 आयत को देखें। In the same way,
और उसी प्रकार let your light shine before others, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे या स्तुति करे। Now I know Jesus said that your good works by your right hand should not be seen by the left hand. Jesus said that. हाँ, यीशु ने ऐसा कहा कि जब तेरा दाहिना हाथ भला काम करे तो बायां हाथ को पता ना चले। But here Jesus says, let other people see your good works. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह दूसरे शब्दों में कहता है, होने दे कि दूसरे लोग आपके भले कामों को देखें। What does it implies? How do we put two of these things together? इन दोनों चीजों को हम कैसे मिलाकर चल सकते हैं? In other words, there are things or there are situations when you don't need to tell or show anybody what you have done. इसका मतलब है कि ऐसे कुछ काम होते हैं जब आपको चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं है मैंने अच्छा काम किया है। Amen? आमीन। So if I came and told here on Sunday everything that I did last 2 weeks to set up the new church, और उदाहरण के रूप में अगर मैं यहाँ पे कलीसिया में आऊं और पिछले 2 सप्ताह जो नई कलीसिया को अच्छा बनाने के लिए जो कुछ मैंने किया मैं यहाँ पर आकर उसको गिनाऊं अगर, if I have been telling you all that, truly that is not needed. और अगर मैं ये सभी बातें आपको बताता हूं मैंने ये करा इतना पैसा लगाया वो किया उसकी जरूरत नहीं। I have done many things. मैंने सच में बहुत काम किया है। But I have not told even to my wife what all the things I did last 2 weeks for the new church. मैंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया है कि 2 सप्ताह तक वहां पर क्या तैयारी मैंने की है। That is for me and my God. वो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में है। My left hand doesn't need to know about that. मेरे बाएं हाथ को जरूरत नहीं कि वो दाएं हाथ के भले कामों को जाने। But लेकिन there are other things in my life that everybody else needs to know. लेकिन ऐसी और चीजें हैं मेरे जीवन में जो जरूरी है कि दूसरे लोग जाने। Amen? आमीन। So when I prayed and prepared a good message, और जब मैंने प्रार्थना की तैयारी की अच्छे संदेश के लिए, and I bring it to the congregation, जब मैं कलीसिया के बीच में उस संदेश को लेकर आया, what you all see it. It is something for everybody to see it. वो आप सभी ने देखा है सुना ये सभी के लिए Same है। for the worship team. और आराधना की टीम के साथ भी यही They है। spend hours and hours practicing and preparing for Sunday service. ये बहुत समय व्यतीत करते हैं तैयारी के लिए ताकि रविवार को यहाँ आराधना कर सके। And when you saw the good work, और जब आपने उस भले कामों को देखा, wow, it sounds beautiful. कि सुनने में कितना अच्छा लग The रहा है। music is nice. जो संगीत बहुत अच्छा The है, songs are good. गीत बहुत सुंदर है। What did you do? आपने क्या किया? You worship God. आपने परमेश्वर की आराधना की। You thank God. आपने प्रभु को धन्यवाद दिया। Your good work should cause other people to praise God. आपके भले कामों के कारण दूसरे लोग पिता परमेश्वर की महिमा करें। You hear a good teaching of the word and say, praise God for the word of God today. आप अच्छी शिक्षा को जब सुनते हैं आप कहते हैं प्रभु की स्तुति हो कितना सुंदर वचन आज मिला। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let your change glorify God. होने दे कि आपका बदलाव परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। We need to shine as lights before men, मनुष्य जाति के सामने हमें ज्योति की तरह चमकना that है they may see our good works. ताकि वो हमारे भले कामों को देख पाए। Amen. आमीन। Christ is telling us मसीह हमें यह सिखाता है that if we are to be light, अगर हमें ज्योति बनना है we need to do good works. तो हमें भले काम करने अच्छे काम करने हैं। Good works. अच्छे काम Intentional. That means being intentional. इसका मतलब जो आप जानबूझ कर अपने मन से खुद अच्छे काम करें। It is impossible to be a light to the world without doing something good. और ये मुमकिन नहीं है कि आप संसार में ज्योति बन जाए और कोई भला काम ना करे। Jesus is making a very important point here. यहाँ पर यीशु मसीह महत्वपूर्ण बात हमें बता रहे हैं। It is not good that we only have an academic knowledge of the truth. कि ये ही काफी नहीं है कि सत्य की ज्ञान ही हमें बस हमने पढ़ लिया सत्य के बारे में ये काफी नहीं। It is not just enough to come to church and worship God and be religious about things. और ये काफी नहीं है कि हर रविवार अब कलीसिया आए और एक धर्म को प्रचार करने वाले ही बन के रह जाए। It is not just enough to understand doctrines and systematic theology. और यही काफी नहीं है कि पूरे आप बाइबल की शिक्षा को बहुत अच्छे से प्राप्त कर लो मतलब आपके पास बहुत ज्ञान हो जाए वचन का। Jesus is saying, लेकिन प्रभु यीशु we कह रहे हैं must do good works. हमें फिर भी भले काम करने हैं। All that we know हर चीज जो हम जानते हैं will boil to nothing if it is not accompanied by good works. तो हम चाहे कुछ भी कर लें वो
कुछ उसका फायदा नहीं होगा अगर हम भले काम नहीं करते। Our actions should be louder than our words. हमारे काम हमारे शब्दों से ज्यादा बोलने चाहिए। That's why a great man of God said, इसलिए परमेश्वर के महान दास ने कहा, use words if you need to, शब्दों का इस्तेमाल तब करें अगर आपको उसकी जरूरत हो, but do it. लेकिन उस काम को करें, Demonstrate it. आप उसे करके दिखाएं। So the hymn writer, there's an old hymn. It says, "To God be the glory." और पुराने भजन को लिखने वाला उसने कहा कि परमेश्वर को सारी महिमा मिले। To God be the glory. Great things He has done. Great things He has. Things He has. Amen. That's a very beautiful old hymn. एक बहुत एक सुंदर एक गीत है We haven't sung it for a long time. I have forgotten the words. और काफी समय से गाए नहीं तो मुझे उसके शब्द याद नहीं आ रहे। Our light should convince the people around us that people will see the good works of our God. और हमारी ज्योति दूसरे लोगों को यह यकीन दिलाए कि वो परमेश्वर के भले कामों को देखेंगे। So in this world, और इस संसार में we may get the mistaken impression that our faith is about us. हो सकता है हमने गलत समझ लिया हो कि मेरा विश्वास सिर्फ मेरे लिए है, Or our faith is about me trying to get to heaven. या मेरा विश्वास सिर्फ मेरे बारे में कि मुझे स्वर्ग तक पहुंचना है। But it is more than that. लेकिन उससे ज्यादा है ये, We have a social responsibility. हमारे पास सामाजिक जिम्मेवारी है। We have a mandate to change the world. हमें एक हुक्म है कि संसार को बदलना है। This morning, और आज की सुबह as I conclude my message, जब हम संदेश को समाप्त करते हैं, let me tell you, मैं आपको बता दूं, light is loud. जो ज्योति होती है वो बोलती है, उसका स्वर ऊंचा होता है। It doesn't say a word. वो एक शब्द भी नहीं बोलती। It doesn't require any fancy methods or persuasion to convince people that there is light. और ज्योति को जरूरत नहीं कि उसको मिन्नतें करके बताना पड़े कि यहाँ पर मैं हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं रोशनी दे रही हूँ। The light just simply does its job. ज्योति जब चमकती है सबको पता लगता है।